बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं You on the behalf of DMRC family to this event organized in honor of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar. It gives me immense pleasure to stand here today to congratulate and welcome respected guest Mr. Praveen Shakya, DGMRS, Harish Kumar, Manager Work, Yashwant Vyas, Manager RS, R.K. Pawar, AMRS, Lalit Ghai, AM Operation, Chetan Prakash, DGM Transact. On this auspicious day, that is 128th birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar. We all know about Babasaheb Dr. Bhimrao Ambedkar, but as we hear today, I would like to share some words about him. Dr. Babasaheb Ambedkar was born on 14th April 1891 in the town of Mohu, Madhya Pradesh, India. His father was Ramji Maluji Sakpal and mother was Bhimabai. He did his Bachelor of Art from Mumbai. He then enrolled himself in the Columbia University and qualified in Masters and PhD. He is the first PhD in economics and first double doctorate in economics in South Asia. Then he got third and fourth doctorate LLD from Columbia and double literature Osmania. He is also popularly known as the father of our Indian Constitution, as he played the important role of framing the Constitution India. He dedicatedly fought against the scenes of untouchability as well as caste system.
He was the most talented person in the world, which has mastery over 64 subjects, highest in the world according to Cambridge University, London 2011. Professor Amartya Sen, sixth Indian to get prestigious Nobel Prize winning economics, claimed Dr. B.R. Ambedkar is my father in economics. He wrote books like The Buddha and His Dhamma, The Evolution of Provincial Finance in British India, Problem of the Rupee. The RBI formed in 1935 was based on the ideas of Dr. Babasaheb presented to the Hilton Young Commission. His book, The Annihilations of Caste, is included in the syllabus of Delhi School of Economics. He also changed the working time from 12 hours to 8 hours in 1942, which became a light for worker in India. He set up the Centre Water Irrigations and Navigation Commission in March 1944. If our houses are illuminated and if our fields are green, it's because Dr. Babasaheb Ambedkar stated role in the planning project on which rests a major part of Indian economics today. He also strived hard for liberations and empowerment of Indian women and framed many laws for them to benefit for women's labor bill, restorations of ban on women's working underground in mines, etc. The man who started the provision for a finance commission every 5 years in the constitution was none other than B.R. Ambedkar bust was unveiled at prestigious Brandeis University, Boston, the USA on 29th April 2017. Dr. Ambedkar's statue at the Brandeis University adds another chapter in the Dalit history. Due to his qualifications and contributions for the upliftment of Indian society, Dr. Babasaheb Ambedkar is considered as symbol of knowledge. Our word of appreciation will always fall short of his accomplishment. The only way to give him a heartfelt respect and admiration is by following his path and adopting his principles. So let's take pledge to adhere to the same principles and make our country a better place for all. यहाँ पर उपस्थित ऑनरेबल चीफ गेस्ट चेतन प्रकाश सर से अभी निवेदन करना चाहूँगा एवं जसवंत व्यास ट्रेनिंग मैनेजर रोलिंग स्टॉक यहाँ उपस्थित हैं। सरिता गार की मैनेजमेंट टीम जो कि इस कार्य को बहुत बखूबी करती है, मिसेस प्रकाश भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मिसेस प्रकाश सर ने यहाँ पर जो प्रदर्शन किया है। अब हमारे ट्रेनिंग मैनेजर रोलिंग स्टॉक श्री जसवंत व्यास सर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। तालियों से स्वागत किया जाए साहब। मैं निवेदन करूंगा आरआरए प्रेसिडेंट राजीव सर, ये यहाँ के चयनित अध्यक्ष हैं। हेलो, देखिए हाथ सर, इधर देखिए। मैं निवेदन करूंगा कुलदीप सिंह जी का भी कि वह आगे हैं। इधर देखना सामने को। अच्छा, कुलदीप कुमार जी जो हमारे और पूरा डेडिकेशन दिया है अपना, इनके लिए जोरदार तालियां कुलदीप भाई के लिए। अतिथिगण के अलावा जो हमारे विशिष्ट हैं सकते हैं बुद्ध वंदना के लिए जो यहाँ परफॉर्म करेंगे, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा।
तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि अधिनादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियाना वेरमणि सिक्खापदं थोड़ी सी लाइट कटेगी। समाधियामि साधु साधु साधु। बुद्ध वंदना में आप लोगों ने जो देखा सुना उनके लिए एक बढ़िया से तालियां तो बजाइए। तालियों में कोताही नहीं होनी चाहिए, प्रोग्राम की जान होती हैं तालियां, हौसला अफजाई के लिए। अगले प्रोग्राम में भीम आरती होगी। अगले प्रोग्राम में भीम समाज की प्रगति चाहते हैं तो महिलाओं की प्रगति बहुत जरूरी है और इन दोनों महिलाओं ने करे सब मिलकर आओ जी आरती बाबा साहेब की करे सब मिलकर आओ जी आरती बाबा साहेब की करे सब मिलकर आओ जी आरती बाबा साहेब की।
इस जोरदार परफॉर्मेंस। बाइबल पे क्रिश्चियन, कुरान पे मुसलमान चलता है। ए दुनिया वालों मैं तुम्हें बता दूं, भारतीय संविधान पर सारा जहान चलता है। जोरदार तालियां बच्चों के लिए, बहुत सुंदर गीत है ये। प्यारे भाई बहनों खबर सुनो एक ताजा।
गीत कैसा लगा पहले तो ये बताइए सब लोग, कितने लोगों को अच्छा लगा है हाथ ऊपर करके बताएं। धन्यवाद। इन बच्चों ने बहुत भीम तन रचती इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाया। भीम तन रचा इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाया। भीम तन रचा इतिहास रे, दुनिया में नाम कमाया। भीम कभी पढ़ने जाया करता, मास्टर बाहर बिठाया करता। भीम कभी पढ़ने जाया करता, मास्टर बाहर बिठाया
एक बार से फिर इस महिला शक्ति के लिए माफी चाहेंगे। छोटी मोटी त्रुटियां होती हैं और स्वाभाविक है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और माता रमाबाई के त्याग, समर्पण और संघर्ष की कहानी जो आपको रुला देगी। कृपया पूरे नाटक को ध्यान से देखें। बात तब की है जब वडोदरा के महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर को विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए वजीफा दिया था और बाबा साहब विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे। तब बाबा साहब अंबेडकर अपनी पत्नी रमाबाई और 5 बच्चों के बारे में चिंतित होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बाबा साहब अपनी चिंता माता रमाबाई के सामने व्यक्त करते हैं और माता रमाबाई किस प्रकार बाबा साहब को विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए हौसला बढ़ाते हैं। मैं यहाँ हूँ साहब। रमा, बड़ौदा के महाराज ने मुझे विदेश जाकर पढ़ने के लिए वजीफा दिया है। अरे वाह साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ रमा, बात तो खुशी की है, लेकिन जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे चिंता होने लगती है। मुझे चिंता होने लगती है इस बात की कि जब मैं विदेश चला जाऊंगा तो तुम हमारे 5 बच्चों का पालन पोषण कैसे करोगी, इस घर का खर्चा कैसे चलाओगी। मेरे पास इतने रुपए भी नहीं है कि मैं तुमको देकर चला जाऊं ताकि तुम मेरे बाद घर का खर्चा चला सको। और मुझे चिंता इतनी होने लगी है कि ये चिंता मुझे रोक रही है, मुझे कमजोर कर रही है। रमा, तुम ही बताओ, क्या मुझे विदेश जाकर पढ़ना चाहिए? हाँ साहब, आपको विदेश जाकर जरूर पढ़ना चाहिए। ये बात सच है कि हमारे 5 बच्चे हैं और आपके जाने के बाद इनका ख्याल मुझे ही रखना है, लेकिन हमारे पास आमदनी का भी कोई साधन नहीं है और आप भी मुझे कोई जमा पूंजी देकर नहीं जा रहे हैं जिससे आपके जाने के बाद मैं इस घर का ख्याल रख सकूं। लेकिन साहब, मुझे एक बात अच्छे से ध्यान है, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब बाबा ने मुझसे कहा था कि रमा, मेरे भीमा को खूब पढ़ना है, उसे बड़ा आदमी बनना है और उसका ख्याल रखना है, तुझे भी उसका ध्यान रखना है। लेकिन ये बात आप कैसे भूल गए साहब? आपने हमारे मरते हुए बाबा को वचन दिया था कि बाबा, मैं खूब पढ़ाई करूंगा, खूब पढ़ूंगा मैं और एक बड़ा आदमी बनूंगा, आपका नाम रोशन करूंगा, इस समाज के उत्थान के लिए कुछ करके जाऊंगा। ठीक है रमा, मैं जाता हूँ पढ़ने। आप निश्चिंत होकर जाइए साहब, और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि इन बच्चों का और इस घर का ख्याल मैं अच्छे से रखूंगी। आप अपनी पढ़ाई पूरी करके आइए। ठीक है रमा, ठीक है। रमाबाई ने अकेले ही पूरे परिवार का पालन पोषण किया। उनके परिवार में उनकी जिठानी थी, उनकी जिठानियों के बच्चे भी थे और उनके खुद के 5 बच्चे थे। इस पुरुष प्रधान समाज में कितनी मुसीबतों का सामना करके एक स्त्री ने अपने घर का खर्चा किस प्रकार चलाया होगा, आइए देखिए मैं दृश्य। अरे रमा, आपको कहाँ थी? बता कर भी नहीं गए। ताई, बच्चे कितने परेशान हो रहे थे तुझे देखने के लिए। ताई, मैं सुबह काम की तलाश में गई थी, किस किस के आगे हाथ फैलाती काम के लिए, तो सोचा खुद ही कुछ कर लूं। इसलिए मैंने गलियों से गोबर इकट्ठा किया और उसके उपले बनाकर बाजार में बेचकर आई हूँ। उससे कुछ पैसे आए थे, घर का सामान भी लाई हूँ, शायद इससे कुछ हो जाए। देख, गंगाधर की तबीयत कितनी खराब है, तो तेरे पास कुछ पैसे बचे हैं तो इसको डॉक्टर को दिखाते हैं। ठीक है ताई, मैं अभी डॉक्टर को दिखा के आती हूँ। डॉक्टर साहब, देखना मेरे बेटे को क्या हो गया है। इसका शरीर भी ठंडा पड़ गया है, ये कुछ बोल भी नहीं रहा है। आपने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। आपने यहाँ आने में बहुत देर कर दी और ये बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टर साहब, आप एक बार और अच्छे से चेक कीजिए ना। मैंने देख लिया है और ये अच्छे बच्चा से इस चेक दुनिया में कीजिए। अब नहीं रहा है। आप धैर्य रखिए। प्लीज आप चेक कीजिए ना एक बार और। मैंने बच्चे को ठीक से चेक कर लिया है और ये बच्चा इस दुनिया में अब नहीं रहा। गंगाधर, गंगाधर।
साहब माता रमाबाई को खत लिखते हैं। सुनिए खत में बाबा साहब क्या लिखते हैं। मैं यहाँ अगर मेरी प्रिय रमा तब भी मेरा काम नहीं चलता है। मैं अपना जीवन यहाँ बड़ी मुश्किल में व्यतीत कर रहा हूँ। मैं सुबह का नाश्ता दोपहर में करता हूँ, रात में पानी पीकर अपना काम चला रहा हूँ। रमा, मैं जानता हूँ कि तेरे सामने भी बहुत समस्याएं होंगी। तू भी बहुत मुसीबतों का सामना करके हमारे पोषण कर रही है और बड़ी ही का सामना करके घर का खर्चा चला रही हो। फिर भी अगर हो सके तो कुछ पैसे भिजवा देना। तेरा भीमराव अम्बेडकर। साहिब, साहिब, वहाँ मेरे साहिब भूखे हैं, यहाँ मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, इलाज के अभाव में मर रहे हैं। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? पर मुझे हार नहीं माननी है, मुझे और काम करना है और अपने साहिब को पैसे भेजने हैं। मुझे उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं पड़ना है। रमा, ये तूने क्या किया? तूने गुल्लक फोड़ दी? हाँ ताई, मुझे साहब को पैसे भेजने हैं। यहाँ तेरे बेटे की तबीयत खराब है और तुझे भीमा को पैसे भेजने की सोच रही है? हाँ ताई, मुझे उन्हें पैसे भेजने हैं। मुझे एक पत्नी होने का फर्ज निभाना है ताई। और तुझे अपने बच्चे की कोई परवाह नहीं? तू माँ है या डायन? अब यह समाज मुझे माँ कहे या डायन, लेकिन मुझे उससे पहले एक पत्नी होने का कर्तव्य निभाना है। मैंने अपने साहब को वचन दिया था कि मैं उनका हर कदम पर साथ दूंगी और मुझे उनको पैसे भेजने ही पड़ेंगे ताई। मुझे उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं बनना है ताई, मुझे उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं बनना है। और बड़ी मुश्किलों से जुटाए हुए रुपए बाबा साहब को भेज दिए और उधर इलाज के अभाव में उनकी बेटी इंदु ने भी दम तोड़ा। यह बात भी माता रमाबाई ने बाबा साहब को नहीं बताई। कुछ वर्षों बाद जब बाबा साहब विदेश से पढ़कर घर आते हैं और परिवार से बात करते हैं, देखिए वह दृश्य। रमा, हाँ साहेब। रमा, गंगाधर दिखाई नहीं दे रहा। रमा, इंदु दिखाई नहीं दे रही। इंदु, गंगाधर। अरे भीमा, गंगाधर, तुम आ गए? हाँ भाभी मैं आ गया। अच्छा, कैसे हो भीमा? मैं ठीक हूँ भाभी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इंदु गंगाधर अब नहीं रहा इस दुनिया में। क्या? रमा ने तुम्हें इसलिए ये बात नहीं बताई। तुम्हारी पढ़ाई में कोई बात नहीं। क्या? रमा, रमा, तूने ये क्या किया? रमा, तूने ये क्या किया? मेरा बच्चा की मौत की खबर भी मुझे नहीं दी। रमा, तूने ये क्या किया? मेरी पढ़ाई की कोई समस्या ना हो, तूने ये क्या किया? रमा, तूने कितना त्याग किया, तूने कितना संघर्ष किया। रमा, तूने कितना संघर्ष किया। तू धन्य है रमा, तू धन्य है रमा। कुछ दिनों बाद अनुभव के अनुसार बाबा साहब बड़ोदरा के महाराज के यहाँ नौकरी करने के लिए जाते हैं तो रमाबाई खुश होती हैं और अपनी जिठानी से बात करती हैं। आइए देखिए वे दृश्य। तो साहब विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गए हैं। अब तो वो बड़े अफसर भी बन गए हैं। अब उन्हें अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी। अब हमारे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। बिल्कुल सही बोला। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे अब कभी भूखे नहीं सोएंगे। अब हमारे दुख के दिन बीत गए ताई। अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे ताई। अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे। बिल्कुल सही कहा रमा तुमने। देखिए बड़ोदरा के राज्य का वो दृश्य जब बाबा साहब बड़ोदरा राज्य में नौकरी करते हैं। पानी तो पिलाओ। तो इसे
है पानी पीने वाला। चपरासी जरा पानी तो पिलाओ। चपरासी ये क्या कर रहे हो तुम? मेडर, ये पानी तेरे लिए नहीं है। क्यों? ये पानी मेरे लिए क्यों नहीं है? तुम इस पानी को नहीं पी सकते। मैं क्यों नहीं पी सकता इस पानी को? क्योंकि अगर तुम इस पानी को पियोगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तुम हमसे बड़े ऑफिसर हो गए, पढ़े लिखे भी हो गए, लेकिन इस पानी को नहीं पी सकते। तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारा अफसर हूँ। मैं तुमको रिटायर कर सकता हूँ, मैं तुमको नौकरी से निकाल सकता हूँ। हाँ सर, निकाल दो, लेकिन मैं इस पानी को तो बिल्कुल नहीं पीने दूंगा और अपने धर्म की रक्षा जरूर करूंगा। अपना धर्म भ्रष्ट होने नहीं दूंगा और आज तुम्हें ये पानी पीने नहीं दूंगा। निकाल दो नौकरी से। ये कैसा धर्म है तुम्हारा? ये कैसा धर्म है तुम्हारा जो मुझे पानी पीने से रोकता है? ये कैसा धर्म है तुम्हारा जो इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाता है? ये कैसा धर्म है तुम्हारा जो इंसान इंसान में भेद करना सिखाता है? ये कैसा धर्म है तुम्हारा? अरे चपरासी, तुम इस धर्म के नशे में अंधे होकर शैतान बन गए हो। तुम्हारे इस धर्म ने तुम्हारे अंदर से मानवीय गुण खत्म कर दिए हैं। मुझे नहीं रहना तुम जैसे शैतानों के बीच में जो इंसान इंसान में भेद करते हैं। मुझे नहीं रहना ऐसे लोगों के बीच में जो इंसान को इंसान नहीं समझते। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे नहीं रहना। आपके रहने सहने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। जब पारसी धर्मशाला में बाबा साहब अपना नाम बदल कर रहे तो जातिवादी लोगों ने उनके साथ वहाँ भी अमानवीय व बड़ा ही भद्दा व्यवहार किया और इन तमाम बातों से दुखी होकर बाबा साहब 11 दिन बाद ही बड़ौदा से अपने घर के लिए निकलते हैं और गुरुदास रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां उनकी ट्रेन 4 घंटे लेट होती है तो बाबा साहब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं, देखिए वह दृश्य। कि मेरे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरे समाज के लोग फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। शायद ये लोग इसलिए मेरे समाज के लोगों से भेदभाव करते होंगे। मैं तो आज तक सोचता था कि मेरे समाज के लोग गरीब हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, शायद इसलिए ये लोग मेरे समाज के लोगों से नफरत करते होंगे। लेकिन मैं तो इंग्लैंड और अमेरिका से पढ़कर आया हूँ, मेरे पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं, मैं तो कोट पैंट भी पहनता हूँ, मैं बड़ा अधिकारी भी हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ इतना भेदभाव, इतना बड़ा भेदभाव। मेरा समाज, मेरा इतना बड़ा समाज जो सदियों से इनकी धार्मिक और सामाजिक गुलामी की चक्की में पिस रहा है, मेरा समाज। मैं आज ये संकल्प लेता हूँ कि मैं ऐसी व्यवस्था को ध्वस्त कर दूंगा जो इंसान को इंसान नहीं समझती है, जो इंसान इंसान में भेद करती है। मैं अपने समाज को इस व्यवस्था से जरूर मुक्त कराऊंगा। मैं सौगंध लेता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं ऐसी व्यवस्था को ध्वस्त कर दूंगा। मुंबई की कोर्ट में वकालत करते हैं। उसी दौरान उनका चौथा बेटा राजरतन बीमार हो जाता है। देखें वह दृश्य। नानक चंद, जाना जरा साहब को बुला के लाना, उनसे कहना कि उनके बेटे राजरतन की तबीयत बहुत खराब है, वो लंबी लंबी सांसें ले रहा है। बाबा साहब, ओ बाबा साहब, जरा देखना राजरतन की तबीयत कितनी खराब हो रही है। क्या हुआ राजरतन? अरे जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे जल्दी चलो, पहले जल्दी चलो, जल्दी देखो तो क्या हुआ है इनको। राजरतन, ये बोल क्यों नहीं रहा? ये बोल क्यों नहीं रहा? राजरतन, ये बोल क्यों नहीं रहा? राजरतन शायद अब ये इस दुनिया में नहीं रहा। राजरतन, रमा तू चुप हो जा। रमा तू चुप हो। बस करो साहब, आप बस करो। आपकी ये सभा सेवा के चक्कर में और आपकी दिन रात भरने की जिज्ञासा ने मेरा पूरा घर उजाड़ के रख दिया है। आपके इस सभा सेवा के चक्कर में हमें कितनी और कुर्बानी देनी पड़ेगी, कितने बच्चे और कुर्बान करने पड़ेंगे हमें।
रमा रमा रमा, तू तो रोकर मुझे अपना दर्द बता भी सकती, मैं तो रो भी नहीं पाता हूँ। रमा, मेरे पास देश भर के कोने कोने से मेरे समाज के बच्चों की मरने की खबर आती है, मेरे पास खबर आती है, मैं अपना दर्द किसको बताऊं? रमा रमा, तू चुप हो जा, रमा तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, तू चुप हो जाती हूँ साहिब, चुप हो जाती हूँ। आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है और ये बात मानकर भी मैं चुप हो जाती हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए साहिब, जब ये राजरतन छोटा था तब आप इसे गोद में उठाकर कहते थे कि रमा हमारा राजरतन बड़ा करेगा। अब ये राजरतन ही इस दुनिया में नहीं रहा तो ये इस देश में कैसे राज करेगा साहिब? इस पे कैसे राज करेगा? आप ही मुझे बताइए। रमा, हाँ रमा, हाँ मुझे वो बात ध्यान है, जब मैं राजरतन को अपनी गोदी में लेता था तो मैं तुझसे कहता था कि जब ये राजरतन बड़ा होगा तो इस देश पर राज करेगा। मुझे ध्यान है वो बात, मुझे ध्यान है, लेकिन मुझे मालूम है कि राजरतन अभी दुनिया में नहीं रहा, मुझे मालूम है, लेकिन मैं राजरतन के पार्थिव शरीर को साक्षी मानकर ये सौगंध लेता हूँ कि मैं इस देश में ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा कि तेरी जैसे हर रमा की कोख से पैदा होने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। मैं इस देश में ऐसी व्यवस्था बनाकर जाऊंगा कि प्रत्येक नारी की कोख से पैदा होने वाला बच्चा इस देश पर राज करने का हकदार होगा। रमा, मैं तुझे इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, रमा मैं ऐसी व्यवस्था जरूर करके जाऊंगा, मैं ऐसी व्यवस्था जरूर करके जाऊंगा। रमा, मैं ऐसी व्यवस्था जरूर। अरे ये क्या, मेरे पास पैसे भी नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं क्या करूं? अरे मुझे तो इंग्लैंड भी जाना है, ये कैसी विकट घड़ी है, ये कैसी परीक्षा की घड़ी है। मुझे तो आज इंग्लैंड भी जाना था, मुझे तो आज इंग्लैंड भी जाना था, मुझे जाना होगा। अम्बेडकर, ये क्या कर रहा है तू? यहाँ तेरे बेटे की लाश पड़ी और तुझे विदेश जाने की सोच रही है? कैसा बाप है तू? पागल हो गया है क्या? हाँ दादा, ये पागलपन ही तो है, ये पागलपन ही तो। मेरे बेटे की लाश मेरे घर के आंगन में पड़ी हुई है और मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ये पागलपन ही। लेकिन मैं अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखकर इंग्लैंड जा रहा हूँ, मेरे कलेजे पर क्या बीत रही है ये कोई नहीं समझ सकता, ये कोई नहीं समझ सकता। मेरा बेटा राजरतन तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसकी चिता को अग्नि देने के लिए तो यहाँ बहुत लोग हैं। दादा तुम भी हो, दादा तुम भी हो। लेकिन यदि मैं इंग्लैंड नहीं गया तो गांधी और कंपनी के लोग मेरे समाज के करोड़ों करोड़ों बच्चों को मौत के घाट उतार देंगे। दादा, मौत के घाट उतार देंगे, मेरे समाज के लोगों को अधिकारों से वंचित कर देंगे, उन्हें सदा सदा के लिए शोषण की भट्टी में झोंक देंगे। दादा मुझे जाना होगा, मुझे इंग्लैंड जाना होगा, मुझे मेरे समाज के लिए बोलना होगा, मुझे मेरे समाज के लोगों को अधिकार दिलाने होंगे, मुझे उनको शोषण से मुक्त कराना होगा। दादा दादा मुझे जाना होगा, दादा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो दादा। अम्बेडकर, तो चाहे कुछ भी कर ले, विदेश चला जा, पूरी दुनिया घूम ले, लेकिन तेरी इस कुर्बानी को कोई याद नहीं करेगा। मत जा भाई विदेश, मत जा, तू यहीं रुक जा। दादा मुझे नहीं मालूम कि कोई मेरी इस कुर्बानी को याद रखेगा या नहीं रखेगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि इतिहास इस दिन को याद रखेगा कि एक ऐसा अम्बेडकर भी था कि जिसके बेटे की लाश उसके घर के आंगन में पड़ी हुई थी और अपने समाज के लोगों के लिए, अपने देश के लिए इंग्लैंड में जाकर लड़ रहा था। इतिहास इस दिन को याद रखेगा, इतिहास याद रखेगा कि एक ऐसा अम्बेडकर भी था जो अपने समाज के लोगों के लिए अपना सुख चैन नींद खोकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ रहा था। या दादा
यदि मैं इंग्लैंड नहीं गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी आंखों से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। दादा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। इन्हें कोई नहीं रोकेगा, जाने दो इन्हें, जाने दो। रमा तू धन्य है, रमा तू धन्य निभाया। बाबा साहब ने हम सबको वोट का अधिकार देकर एक बराबर ताकत दी। आज किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आज हमारे पास जो नौकरी है, जो दौलत शोहरत है, वो बाबा साहब की बदौलत है। आज आपके पास जो अधिकार है, वो बाबा साहब की बदौलत है। आप अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, अच्छी अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी में भेज रहे हैं। इसका श्रेय केवल और केवल बाबा साहब और माता रमाबाई के त्याग, समर्पण, संघर्ष को ही जाता है। और आपको ये बात अपने बच्चों, अपने समाज को बड़े ही गर्व से बतानी चाहिए। आपको अपने समाज की भी चिंता करनी चाहिए, आपको अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभानी चाहिए और आपको न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और मानवता के सच्चे ध्वजवाहक एक अम्बेडकरवादी होने पर गर्व होना चाहिए। जय भीम, जय भारत। की रचना करी, प्रदीप बौद्ध जी के लिए तालियां। और उनके जो बड़े भाई हैं संतोष कनौजिया जी, जो इस प्ले में किरदार निभा रहे थे, उनके लिए तालियां परफॉर्मेंस के लिए। और ज्योति का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पर मंच का संचालन किया और हमें अवगत कराया कि प्रोग्राम अब कैसा था, आगे उसके बाद क्या हुआ। जोरदार तालियां इस पूरी टीम के लिए, धन्यवाद। जय भीम। इनके लिए जो बाबा साहब को थोड़ा सा अंश लेकर के हमें मैसेज दे पाए और आप सभी ने बड़े संयम से सुना। और ये ऐसा प्ले था जो शायद हमारे लिए नया था, पर मैसेज देने में वो सफल रहे। उनके पूरे परिवार को धन्यवाद, जो पूरा परिवार लेके परफॉर्मेंस दिया। ज्योति को धन्यवाद और आप सभी को धन्यवाद। तो जोर से बोलिए जय भीम। और याद करके देखिए कि अगर बाबा साहब नहीं होते, अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारा क्या होता। बाबा साहब नहीं होते तो हमारा वही होता जो राज रतन का हुआ। इसके बाद इस प्रोग्राम के बाद परिणाम मेरा
को है परिणाम मेरा, परिणाम मेरा। उनकी हौसला अफजाई करते रहिए। और इसी बीच हम सत सत प्रणाम करते हुए बाबा साहब को अगली कड़ी में मिस्टर हरीश कुमार, श्री हरीश कुमार। बाबा साहब के नाम के आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं, डॉक्टर लगाते हैं, ये उनकी शैक्षणिक उपाधि है। लेकिन अगर देखा जाए तो बाबा साहब एक डॉक्टर ही थे जिन्होंने सदियों से चली आ रही एक लाइलाज बीमारी का इलाज कर दिया। और वो इलाज कैसे किया, जोरदार तालियां इस बात के लिए। एक गाने के माध्यम से बताऊंगा कि बाबा साहब ने कैसे इलाज किया। ओ कर गया ऐसा कमाल, ओ माता भीमाई का लाल, कर गया ऐसा कमाल, रोग सब काट दिए, रोग सब काट दिए, ओ माता भीमाई का लाल। सदियों से थे शोषित और ना था कोई अधिकार, था कोई अधिकार। ऊंच नीच की विकट बीमारी, ना था कोई उपचार, ना था कोई उपचार। वो मसीहा बन के आए, सारे कष्ट मिटाए, रोग सब काट दिए, रोग सब काट दिए, माता भीमाई का लाल। कष्ट सहे विद्वान बने वो, करके खूब पढ़ाई, करके खूब पढ़ाई। लाख विरोधी रास्ता रोके, लड़ते रहे वो लड़ाई, लड़ते रहे वो लड़ाई। और ऐसी अलख जगाई, सोती कौन जगाई, रोग सब काट दिए, रोग सब काट दिए, ओ माता भीमाई का लाल। महिलाओं के हक की खातिर कई कानून बनाए, कई कानून बनाए। मजदूरों की सोची भलाई, ऐसे विधान बनाए, ऐसे विधान बनाए। रखा सबका ख्याल, दिया सबको संभाल, रोग सब काट दिए, रोग सब काट दिए, माता भीमाई का लाल। भारत की दुनिया में होती भीम से पहचान, भीम से पहचान। जिसको ना था हक पढ़ने का, लिख डाला संविधान, लिख डाला संविधान। ओ ऐसी कलम चलाई, दे दी ऐसी दवाई, रोग सब काट दिए, रोग सब काट दिए, माता भीमाई का लाल। याद रखेगी सारी दुनिया भीम की अमर कहानी, भीम की अमर कहानी। बच्चों का बलिदान दिया था, दी कितनी कुर्बानी, दी कितनी कुर्बानी। था हरीश भी भिखारी, जिसको दे दी दुनिया सारी, रोग सब काट दिए, रोग सब काट दिए, ओ माता भीमाई का लाल। कर गया
किया ऐसा कमाल, रोग सब काट दिए, रोग सब